Hello friends, welcome to HM classes. Hope you all are fine. And my name is Netra Mehta. From today onwards, I am going to take your SP subject, that is secretarial practice. So let us discuss the chapters that you all are having in this subject. Fine. This is your textbook, your new portion, your new textbook. You can see here you all will be having your textbook, so you can keep your textbook in front of you. You can see the pictures that you all are having in your front page of the textbook. I'll just give you the names of the pictures what you all are having. The first picture that you all are having, see, I'm just giving marking an arrow mark here. This is BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. मुंबई में सिचुएटेड है, चर्च गेट में है ये बिल्डिंग. Your second picture is, this is National Stock Exchange. It is situated in Mumbai itself. This is SEBI. फुल फॉर्म पता है ना तुम लोग को 11th में? पता होगा, बोलो. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ यू नो इसको और एक चीज कहा जाता है, इसको वॉच डॉग कहा जाता है. क्यों पता है? क्योंकि ये नजर रखता है ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे. इट मेक्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज दैट इज सिचुएटेड इन आवर इंडिया मुंबई. बीएससी एंड एनएससी को दोनों को कंट्रोल करता है, वो लोग पे वॉच रखता है, एंड इट मैनेजेस ऑल द शेयर्स, डिबेंचर्स which are sold and buy. Okay, now this is the another picture, your fourth picture. You can read the names, that is trade credit, equity shares, debentures. Debentures को तुम लोग debt capital भी बोल सकते हो. Euro issue. Euro issue means you are going to study about a European currency in this. And the last is your preference shares. Okay. नेक्स्ट इज NSDL. वापस और एक फुल फॉर्म. यस, ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, जहां पे इट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन where it creates and holds the security such as bonds and shares. Okay, by this pictures एक चीज तुम लोग को समझनी है कि ये तुम लोग का जो 12th का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा स्टॉक मार्केट पे और कैपिटल मार्केट पे बेस्ड है, शेयर मार्केट पे. राइट? बिजनेस में पैसे, बिजनेस कैसे चलाना है, बिजनेस में पैसे कैसे आते हैं, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मेनी थिंग्स you all are going to learn in this. Okay, now we'll discuss the content, the index that you all are having. See, we'll go to the index. Yes. तुम लोग को अब तक तो पता ही होगा, बट लेट मी टेल यू, you all are having total 12 chapters in this subject. 12 चैप्टर्स है, कर लेंगे. बहुत इजी सब्जेक्ट है एंड मच नॉलेजेबल, बहुत सीखने मिलेगा तुम लोगों को. सो नया पोर्शन है, कुछ चैप्टर्स चेंज हुए हैं, कुछ चैप्टर्स वही है. I'll just let you know which chapters are new for you all. Now, your first chapter you can see, it is a introduction to corporate finance. आज हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर. फाइन. ये कॉर्पोरेट फाइनेंस को हम बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हैं. Now this chapter is new for you all, and second chapter is also new.
that is sources of corporate finance. Your third chapter is issue of shares. Fourth, first, second, and third, these three chapters are new. Fourth is issue of debentures. डेप कैपिटल बोल सकते हो, डेप बॉन्ड बोल सकते हो उसको, इशू ऑफ डिबेंचर्स को, डिपॉजिट्स. देन यू कैन सी दिस. योर थ्री चैप्टर्स नंबर्स आर 6, 7 and 8. Correspondence with members, डिबेंचर होल्डर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स. ये तीन चैप्टर है जहां पे तुम लोग लेटर्स लिखना सीखोगे, बिजनेस लेटर्स, कैसे हमें कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए बिजनेस में. ओके, नाउ योर 9th चैप्टर इज डिपॉजिटरी सिस्टम. ओके, दिस इज न्यू. And your 10th chapter is dividend and interest. Last old portion में ना तुम लोग को एक चैप्टर था डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अभी उसको वहां से हटा के इसको एक अलग एक नया चैप्टर का नाम दे दिया है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. योर 11th and 12th chapter, that is financial market एंड स्टॉक एक्सचेंज. यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तुम लोग बहुत सीखोगे. कितने स्टॉक एक्सचेंज है? वी आर हैविंग 2 स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE. BSE means Bombay Stock Exchange and NSE means National Stock Exchange. Fine. Last one, you all are having the answer keys. आंसर keys हाँ तुम लोग के लिए है, बट कॉपी करने के लिए नहीं है. प्लीज डोंट एवर कॉपी. फर्स्ट you all are going to try do the exercises yourself and then you all can check the answers. Okay, now it must be clear to you all the index. Now let us start our first chapter. Chalo. इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. इससे से कुछ समझ में आता है तुम लोग को? कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या, मैं बता दूं. पहले हम डिवाइड कर लेते हैं दो चीज. चलो, फाइनेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट फाइनेंस इज वन वर्ड, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस? टेल मी. अभी अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि फाइनेंस का मतलब क्या है, तो आप लोग क्या मुझे बोलोगे? मनी. यस, इट इज मनी. बट हम लोग की नजर में फाइनेंस का मतलब पैसा है. यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं. फाइनेंस वर्ड अगर मैं बिजनेस की नजर से देखूं तो मनी प्लस अरेंजमेंट ऑफ मनी, दैट इज नोन एज फाइनेंस. अभी वेयर टू ब्रिंग द फाइनेंस, हाउ टू अरेंज द मनी, and from which source I am going to bring. There are many sources from where I can acquire the money, right? Which policies I need to choose. Policies भी बहुत सारी है मेरे पास, sources भी बहुत सारे हैं फाइनेंस चूज करने के. पर मुझे चूज करना है कि मुझे फाइनेंस ज्यादा कहाँ से अक्वायर होगा, राइट? तो ये फाइनेंस का मीनिंग क्लियर हो गया तुम लोगों के लिए. अभी हम टोटल कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्लियर करते हैं पहले, राइट? नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस? अभी अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें तो मैं उसे बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकती हूँ. ओके, आई कैन टेल अ कॉर्पोरेट फाइनेंस एज अ बिजनेस फाइनेंस ऑल्सो. ये था चैप्टर तुम लोग को लास्ट पोर्शन में, बट अभी सिर्फ नाम चेंज हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस कर दिया है बिजनेस फाइनेंस की जगह पे. फाइन. यहाँ पे अगर मैं तुम लोग को बोलूं बिजनेस
फाइनेंस या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस को दो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल इज acquiring the finance, acquiring और acquisition of finance, लेना फाइनेंस मेरे कंपनी में, मेरे बिजनेस में लाना, दैट इज नोन एज acquiring और acquisition of finance, plus application of finance। yes, अभी मेरे पास, मैंने फाइनेंस अक्वायर तो कर लिया, आ गया फाइनेंस, पर अभी वो फाइनेंस का मैं क्या करूंगी? यस, आई वॉन्ट टू अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, मुझे वो फाइनेंस को यूज करना है और वो भी एक ऑप्टिमम लेवल तक यूज करना है, राइट नाउ। और एक एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को, जैसे सोल ट्रेडर होता है, तुम लोगों ने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस तो पढ़े रहेंगे, राइट उसमें एक सोल ट्रेडर रहता है, वो सिंगल सेलर होता है, उसके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं सोर्सेस के अक्वायर करने के फाइनेंस का। बट अगर मैं तुम लोग को जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे चलता है, उसको फाइनेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पे उसके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं कि मुझे कौन सी पॉलिसीज चूज करनी है, how much finance do I need, each and everything it is decided when I am running a joint stock company। देखो क्या लिखा है, corporate finance deals with the raising and using of finance by a corporation। It deals with the financing the activities of the corporation, capital structure and making investment decisions। बहुत सिंपल है, पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है मुझे, बट वो फाइनेंस कहाँ से आएगा? फ्रॉम वेयर इट विल कम? इट विल कम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज दैट आई एम हैविंग, क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये लार्ज स्केल बेसिस पे चलता है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है फाइनेंस को अक्वायर करने के लिए। पर हाँ, एक चीज उसको बहुत अच्छे से याद रखनी है, दैट द बिजनेस, द जॉइंट स्टॉक कंपनी ने जितना भी फाइनेंस अक्वायर किया है, जितनी जरूरत है उतना ही अक्वायर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग यू ऑल आर हैविंग दैट जो अक्वायर किया है मैंने फाइनेंस, वो ऑप्टिमम यूज तक उसे यूज होना चाहिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ दैट कैपिटल फाइनेंस, राइट नाउ there are many sources right to acquire finance। तो मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए या फिर कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो कम से कम कॉस्ट में मुझे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस दे मेरे बिजनेस को, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा फाइनेंस देगा, और सबसे इम्पोर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। उससे क्या होगा, मुझे फाइनेंस यूज करने का टाइम भी ज्यादा मिलेगा, राइट। सो आई वांट दैट सोर्स टू बी चूजन फॉर माय कंपनी। कुछ क्लियर हो रहा है तुम लोग को? यस, और एक बार रिपीट करती हूँ, मेनी सोर्सेस, पर वो सोर्सेस में से मुझे एक सोर्स, कोई भी एक सोर्स ऐसा मिलना है या फिर चूज करना है जहां पे मुझे कॉस्ट कम हो और फाइनेंस मुझे ज्यादा मिले और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कम देना पड़े, तो मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा फाइनेंस को यूज करने के लिए और I will get the returns back। Cleared? Yes. Now, एक और चीज बता दूं, अभी फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं,
तो फाइनेंस मेरे बिजनेस में कौन अरेंज करेगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो कौन अरेंज करेगा? यस, यू कैन टेल मी, इतना तो पता होगा तुम लोगों को। यस, फाइनेंस मैनेजर। ये फाइनेंस मैनेजर एक ऐसा बंदा है हु इज डिसाइडिंग द फाइनेंस, हाउ मच इज नीडेड इन माय बिजनेस। कितना फाइनेंस मेरे बिजनेस में मुझे कब, कहाँ, कैसे चाहिए, ये सब फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा। आर यू गेटिंग इट? यस। नाउ फाइनेंस मैनेजर की 3 ड्यूटीज होती है। पहले भी मैंने बताई, वापस बताती हूँ और एक बार सुन लो। 3 ड्यूटीज। हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले मेरे कंपनी में, मेरे बिजनेस में कितना फंड मुझे चाहिए, वो फाइनेंस मैनेजर को पता होना चाहिए। यस। सेकेंड थिंग, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ फंड। जो मैंने अक्वायर किया है वो मुझे एक ऑप्टिमम लेवल तक उसे यूज करना है, वेस्टेज के बिना। थर्ड, वो फंड मैंने यूज किया, बट आफ्टर पुटिंग दैट फंड इन माय बिजनेस, और यू कैन से एज दैट risk that I have taken or investment I had done in my business, तो वो बिजनेस से मुझे वापस रिटर्न मिलना चाहिए, एंड दैट टू मैक्सिमम रिटर्न आई नीड, राइट? मैक्सिमम रिटर्न मुझे मिलेगा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उतना आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो मैक्सिमम रिटर्न मिले, राइट? सो अकॉर्डिंग टू हेनरी हॉगलैंड, नाउ ये तुम लोग का दूसरा डेफिनेशन है विच इज गिवन बाय एन हेनरी हॉगलैंड, यू कैन सी। Yes. Henry Hogland expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital. Acquisition मतलब मैंने acquire किया fund and I am using in an optimum way. Now, the term corporate finance also includes financial planning, study of capital market, money market, and share market, right? It also covers capital formation and foreign capital. Even financial organization and bank play a vital role in corporate finance. अभी सिर्फ मेनी सोर्सेज की जैसे मैंने बात की, उसमें एक बैंक भी है और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। मीन्स इफ यू कैन सी दैट बैंक प्रोवाइड्स लोन, financial organizations are there which are helping the business to get the finance and run the business very smoothly, right? अगर हम लोग नीचे देखो ऑप्शंस लिखे हैं, यू कैन सी द फर्म हैज एन एडिक्वेट फाइनेंस। ये सब फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी है। क्या है, क्या उसे ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स लिखे हैं। लेट अस रीड। द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस मीन्स, एडिक्वेट फाइनेंस मतलब क्या? व्हाट अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड, कहाँ से वो आएगा, कितना फंड चाहिए और मुझे किस डिपार्टमेंट में या कौन से बिजनेस एक्टिविटी में मुझे वो फंड को यूज करना है। इट शुड बी प्री प्लान्ड एक्टिविटी। आफ्टर हैविंग द एडिक्वेट फाइनेंस, द फाइनेंस मैनेजर should be able to use the finance that is acquired very properly. Clear? Your second point, they are using the right source of fund that have minimum cost, right? The firm utilizes raised funds
effectively, and they are generating maximum returns for its owners. मैंने acquire किया, मैंने वो फंड को यूज भी किया, बट जब भी मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मैं वो मेरे कंपनी में जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको एक मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करूंगी, सो दैट दे विल बी एबल टू गेट अ गुड प्रॉफिट बाय माय कंपनी. क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट you can see two decisions. Yes, there are two main decisions of corporate finance. सबसे पहला है financial decision और next one you all are having is investment decision. हम पढ़ते हैं पहले. Let us read. The firm can choose whether it want to raise equity capital or debt capital. Firm can even opt for bank loan, public deposits, debentures, etc. Right? Now, अगर हम इक्विटी कैपिटल की बात करें तो इक्विटी मीन्स द कैपिटल दैट is been raised by the company when it is getting incorporated. जब भी कंपनी स्टार्ट होती है ना तभी मोस्टली सारी कंपनीज इक्विटी शेयर इशू करती है या फिर डेट कैपिटल लेती है, मींस डिबेंचर इशू करती है या फिर बैंक में से लोन ले रहा है. ओके, नाउ पब्लिक डिपॉजिट्स भी होते हैं. पब्लिक आके मेरे कंपनी में आके पैसे भर के दे आर एक्सपेक्टिंग द मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम माय कंपनी. डिबेंचर्स की बात करें, नीचे पिक्चर्स देखो डाउन. डिबेंचर्स की बात करें देन इट इज अ debt capital that has been issued by the company to get more investment. एक चीज बताती हूँ, डिबेंचर जब भी इशू किया होता है ना तब उसका मैक्सिमम अमाउंट 100 रुपीज होता है, 100 से कम नहीं होता है. इक्विटी शेयर की हम बात करें तो इक्विटी शेयर आर टू बी सेल्ड ऑन पर्टिकुलर एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट. एट पार मतलब जो एक्चुअल अमाउंट है वो ही. एट प्रीमियम मतलब क्या, जो एक्चुअल अमाउंट है उससे थोड़ा ज्यादा. दैट इज यू कैन टेल एट पार 10 रुपीज है तो वो एट प्रीमियम हो जाएगा 12 रुपीज. और अगर एट डिस्काउंट की बात करें तो जो एक्चुअल अमाउंट था 10 रुपीज तो एट डिस्काउंट हो जाएगा 8 रुपीज. राइट? So this is equity shares, debenture is cleared, public deposit is cleared, and your bank loan is cleared. Right? जब भी पब्लिक हमें डिपॉजिट भरती है या फिर इक्विटी शेयर्स हमारे लेती हैं कंपनी की, तो इट इज एक्सपेक्टिंग द मैक्सिमम रिटर्न दैट दे आर गिविंग टू अस बाय टेकिंग आवर शेयर्स. Clear? Now, we'll go to the next point, that is investment decisions. Yes, investment decisions क्या है? अभी फाइनेंस ले तो लिया तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना. Yes, इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. So, once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decision regarding the use of the funds in the systematic manner so that it will bring maximum return for its owners. For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. Cost of capital बहुत important है. Now, once they know the cost of capital, the firm can deploy or use the fund in such a way that returns are more than cost of capital. Now, cost of capital क्या है? कोई बताएगा मुझे? Now, cost of capital means minimum return which is expected
फ्रॉम द इन्वेस्टर, राइट? जितना इन्वेस्ट किया है उसमें से रिटर्न मिलना, और वो भी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलना और गेन करना। जितना मैंने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है उससे डबल पैसा मिलना मुझे वापस, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गेटिंग इट क्लियर? यस। Now you will be getting it clear till here. See, और एक बार रिवीजन हम ले लेते हैं। हमने क्या क्या आज किया है वो देख लो एक बार। इंट्रोडक्शन किया है, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू द मनी एंड द मनी मैनेजमेंट। इट इज रिलेटेड टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी। यस, मैंने जितना पैसे इन्वेस्ट किया है उतना मुझे वापस मिलना चाहिए। द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये जो फ्लो कंटिन्यू रहेगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, नहीं तो मैं पैसे डाल रही हूँ मेरे कंपनी में, इन्वेस्ट कर रही हूँ, बट मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं कितने से कितना टाइम तक मैं इन्वेस्ट करूंगी? I cannot invest more till cannot gain, or I cannot get maximum return from the money I have invested, right? Inflow और outflow बहुत होना चाहिए, वो कंटिन्यू रहेगा तो ही मेरा बिजनेस चलेगा। Success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use the fund, right? मुझे फंड कैसे यूज करने हैं, कितने यूज करने हैं, कौन से एक्टिविटी में मुझे वो फंड को यूज करना है, वो सब चीज उसमें पहले से प्री प्लान्ड होनी चाहिए। देन ओनली आई एम एबल टू रन माय बिजनेस। ओके, सो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मीनिंग पढ़ा था। हेनरी हॉगलैंड ने जो बोला था वो कि acquisition and use of capital is the main thing that is done in the business corporation. Next हमने पढ़ा थे 2 decisions, right? Which are the decisions? Yes, you can read now. Financial decisions and second is investment decision. Investment decisions में हमने पढ़ा था cost of capital पढ़ा था, right? यहाँ तक तुम लोग को क्लियर होगा? Now we will move forward to your next point, that is important of corporate finance. फिर उसमें तुम लोग का फर्स्ट पॉइंट है helps in decision making. Now see क्या लिखा है? Most of the important decisions of business enterprises are determined on the basis of availability of funds. Yes, मेरे कंपनी में कितना फंड है, कितना फाइनेंस है, उस पे से मुझे डिसाइड करना है कि मेरी कंपनी की एक्टिविटी में मुझे कितना, कहाँ, कैसे फंड लगाना है, right? See, it is difficult to perform any function of business enterprises independently without finance. क्योंकि एक भी एक्टिविटी, एक भी काम फाइनेंस के बगैर मेरे कंपनी में चलने वाला नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फाइनेंस है। एक चीज एग्जांपल देती हूँ तुम लोग। जैसे हम लोग की जो बॉडी है ना, खून रहता है हम लोग के बॉडी में, पूरे बॉडी में द ब्लड इज रनिंग। अभी एक चीज
बताती हूँ तुम लोग को कि अगर हमारे कोई बॉडी पार्ट में वो ब्लड रन नहीं हो रहा है तो वो बॉडी पार्ट वर्क नहीं होगा। वैसे ही द सेम थिंग दैट इन बिजनेस जो जो पार्ट में फाइनेंस नहीं होगा या फिर मेरी फाइनेंस नहीं होगा तो वो पार्ट मेरे बिजनेस का वर्क नहीं करेगा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में, वैसे ही फाइनेंस सर्कुलेट करता है पूरे बिजनेस में। जो फाइनेंस है मेरे पास मेरे बिजनेस में है और जो पार्ट में वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है या फिर मेरे पास वो फंड कम है तो कुछ एक्टिविटी होगी वो फंड की वजह से नहीं रन होगी क्योंकि वहां पे फंड नहीं है, वहां पे वो फंड सर्कुलेट ही नहीं हुआ है तो वो पार्ट मेरे बिजनेस का नहीं चलेगा। राइट? ये बहुत क्लियर एंड इजी एग्जांपल है तुम लोग के लिए जो माइंड में तुम लोग को क्लियर कर देगा। यस, सी द नेक्स्ट point you all are having, that is helps in raising capital for a project. Now जितना फंड है मेरे पास, जितना फंड मैंने इन्वेस्ट किया है मेरे बिजनेस में तो मैं उतना अक्वायर वापस करूंगी, मुझे रिटर्न भी उतना ज्यादा चाहिए। राइट? हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। Whenever a business firm wants to start a new venture, what a new venture, it needs to raise capital. मुझे कोई नई चीज स्टार्ट करनी है या फिर नया प्रोडक्ट बनाना है तो ऑब्वियसली आई नीड टू रेज कैपिटल, आई नीड टू रेज फंड्स बाय विच सोर्स? सी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड or even by taking loans from the bank. Right? The shares equity or preference shares हैं, debentures that is known as debt capital, bond or even by taking loan from the banks or you can take loan from the financial institutions also. पर हाँ एक चीज पहले भी बताई थी कि मुझे या फिर मेरे बिजनेस को ऐसा सोर्स चाहिए जो कम से कम प्राइस में, कॉस्ट में मुझे ज्यादा फाइनेंस दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कम पे करना पड़े। राइट? see this. Now next point which you all are having, that is help in research and development. Research and development must be undertaken for the growth and expansion of business. Detailed technical work is essential for the execution of projects. Research and development is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. बिजनेस रन होता है, यस, उसमें फंड की भी जरूरत होती है, यस, फंड के लिए मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए, यस, देयर आर मेनी रिसोर्सेज, बट बिजनेस के लिए और एक चीज की जरूरत होती है जो बिजनेस करवाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च और डेवलपमेंट क्या हेल्प करता है हमें? मेरे बिजनेस को हेल्प करेगा ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट होगा मेरे बिजनेस के लिए तो मेरा बिजनेस बड़ा होगा, ग्रोथ होगा और उसका एक्सपांशन भी होगा। देयरफॉर बट ये रिसर्च और डेवलपमेंट करवाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? पैसे की। इन एवरी फील्ड आई नीड फाइनेंस। जहां पे फाइनेंस नहीं है वहां पे मेरा बिजनेस चलेगा नहीं।
ये रिसर्च और डेवलपमेंट करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस को उससे पता चलता है कि मुझे मेरे बिजनेस में क्या चेंजेस लाने हैं, मुझे क्या अपग्रेड करना है, मुझे कितनी नई प्रोडक्ट्स बनानी है, या फिर मेरे प्रोडक्ट्स में मुझे क्या चेंजेस लानी है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुझे कस्टमर्स के नीड्स क्या है, वो लोग को मेरे प्रोडक्ट में क्या चेंजेस चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इट इज हेल्पिंग माय बिजनेस आउट। ये सब जानने के बाद मेरी कंपनी एक्सपांड और ग्रो करेगी। क्लियर? So we jump on to the next point, that is help in smooth running of the business. Yes, अभी एक चीज बताती हूँ, मैं बिजनेस रन कर रही हूँ तो नहीं टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मशीनरीज यूज करती हूँ, बट वो मशीनरीज को कोई तो है जो चला रहा है। What are they said? They are called as laborers, the employments that they are working for my business. Now वो बिजनेस में मेरे लिए वो लोग काम कर रहे हैं, तो इट इज माई ड्यूटी to give them their salary and wages on the time. And you know, एक और चीज होनी चाहिए कि वो लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग को सैलरी दी जानी चाहिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, यू नो, देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस बिटवीन द एम्प्लॉयज कि ये बंदा मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं इसको ज्यादा सैलरी दूंगा, और इससे मेरी राइवलरी है तो मैं इसको पैसे कम दूंगा। ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर वन फॉर मी, दे ऑल आर वर्किंग फॉर माई कंपनी, so they should get their salary paid on time. लोन्स आर क्लियर्ड ऑन टाइम। मैंने जो भी डेब लिया है या फिर मेरे बैंक में से लोन लिया है वो सब टाइम पे हो जाना चाहिए। मैंने जब भी रॉ मटेरियल परचेस किया है, जब भी रिक्वायर हो तभी ही मुझे परचेस करना है, उससे पहले मुझे परचेस करना नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम लोग का? सेल प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इज कैरीड आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च्ड इफेक्टिव। मैंने जैसे जैसे मैं नए प्रोडक्ट्स बना रही हूँ वैसे वैसे मुझे उसे लॉन्च करना है, पर आज मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो एक इफेक्टिव वे में होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट उसकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर्स हैं जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, एंड आई नीड टू गेट द न्यू कस्टमर्स ऑल्सो, बाय दिस इट कैन हेल्प मी टू गेन मैक्सिमम रिटर्न, राइट? और जो भी प्रोडक्ट्स है मुझे अलग अलग वे में उसे लॉन्च करना है या फिर कुछ पैकेजिंग चेंज करना है, लोगों के हिसाब से मुझे बनाना है मेरा प्रोडक्ट। मैं मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, मैं मेरे कंज्यूमर्स के लिए बना रही हूँ जिसे मेरे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, राइट? So your next point, that is fifth point, that is brings co-production between various activities. Yes, corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in an organization. For example, production will suffer if finance department does not provide effective what? Effective finance. Yes. Purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirements for smooth running of production unit. Yes. बहुत important रोल प्ले करता है, बट ये फाइनेंस मैनेजर की, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि मेरी कंपनी को कितना फाइनेंस कब कहाँ और कैसे जरूरत पड़ सकती है, ये पहले से फाइनेंस मैनेजर को पता होना चाहिए।
वो जब भी उसे पता होगा तो वो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे कंपनी में हमें इतने फाइनेंस की जरूरत है, सो वी शुड ट्राई डिफरेंट सोर्सेस, राइट? बाय दिस माय कंपनी कैन रन स्मूथली। अगर वो बंदे को, वो फाइनेंस मैनेजर को पता नहीं है कि मेरे कंपनी में कितनी फाइनेंस की जरूरत है, तो मेरे बिजनेस को वो स्मूथली नहीं रन कर पाएगा। उसे पहले से ही सब पता होना चाहिए। That's why he is called a finance manager, right? Your sixth point is promotes expansion and diversification. Now, modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provides money to purchase modern machines and technology. Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of company. ये एक ही चीज, ये फाइनेंस वर्ड ही ऐसा है जो सब जगह पे रोटेट हो रहा है। फाइनेंस है तो मुझे रिटर्न मिल सकता है, फाइनेंस है तो मैं नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स में यूज कर सकती हूँ, फाइनेंस है तो मैं एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन कर सकती हूँ मेरी कंपनी का, फाइनेंस है तो मैं नए प्रोडक्ट्स नए वे से लॉन्च कर सकती हूँ। अगर फाइनेंस है तो मैं एक बेटर प्रोडक्ट एज पर द कंज्यूमर्स नीड आई कैन give them, right? It is very important to have finance running or circulating in the business. Cleared? Next point है तुम लोग का managing risk. Now company has to manage several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamity, loss due to strikes. Company needs financial aid to manage such risk. अभी कुछ कंपनी में रिस्क होते हैं कि मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो प्रोडक्ट चला बट ज्यादा नहीं, तो मुझे वहां पे लॉस हो गया। यस, इट इज नेगेटिव थिंग फॉर माय कंपनी, बट अगर मैं उसे पॉजिटिवली लूं तो मैं वो प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन अच्छे से लाके, जो मेरे कंज्यूमर्स को पसंद है वैसे लाके मैं वापस लॉन्च करूंगी अगर मेरे मार्केट में, तो वो जितना सेल फॉल हुआ है उससे डबल वो राइज हो सकता है, राइट? आई नीड टू टेक दैट न्यूज पॉजिटिवली कि कुछ चेंजेस लाके मैंने वो वापस प्रोडक्ट लॉन्च किया। नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उससे भी लॉस होता है, बट माय कंपनी शुड बी रेडी फॉर दिस। स्ट्राइक्स करते हैं लेबर्स, बट हाँ वो स्ट्राइक्स कब होती है? जब लेबर्स को वो लोग के हिसाब से सैलरी वेजेस नहीं टाइम पे मिलते हैं, तो अदरवाइज कोई भी नहीं स्ट्राइक करता है। तो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, बट माय कंपनी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड every risk. Okay, so eighth point here is replacing the old asset. See the pictures. Replace old asset. Yes, assets such as plant machineries become old and outdated over the years. They have to be replaced by new assets. राइट नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि हाँ, अगर हम पुरानी तरीके से मैं मेरा प्रोडक्शन हाउस चला रही हूँ तो मेरा प्रोडक्ट या फिर मेरा प्रोडक्शन हाउस मुझे उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके नहीं देगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो जितना
वो आउटडेटेड हो गया है, मेरे असेट्स या फिर मेरे मशीनरीज आउटडेटेड हो गए, तो मुझे उसे रिप्लेस करने की जरूरत है कि इससे ज्यादा वो न्यू टेक्नोलॉजिकली असेट्स ज्यादा अच्छे हैं, मशीनरीज अच्छे हैं, तो उससे लेबर्स को भी आसानी होगी उसे यूज करने में, राइट। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अभी जो बंदों ने, जो इन्वेस्टर्स ने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आई नीड टू पे डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर, राइट। डिविडेंड्स वो भी अच्छा होना चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए वो लोग को, सो दैट दे शुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी अगेन। इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर्स एंड बैंक, मैंने जिसके पास से लोन लिया है मुझे वापस वो लोग को पे करना है विथ certain rate of interest that has been decided before only when I had taken the loan. Clear? Now, this is your last point of this topic, importance of corporate finance का ये last topic है, payment of taxes and fees। ये बहुत कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ना ऐसा होता है ना कि हम टैक्सेस की चोरी कर लेते हैं या फिर टैक्स पे नहीं करते हैं टाइम पे। बिजनेस चलाना है, कमाना भी है, प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए, बट हम पे नहीं करते हैं टैक्स, तो इट इज रॉन्ग। इट इज बिजनेस ड्यूटी टू पे द टैक्स ऑन टाइम, राइट। क्या लिखा है? कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जिसे हम जीएसटी भी बोलते हैं, एंड फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन वेरियस ओकेजन। फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस एंड फाइनेंस सब जगह पे जरूरी है, हर एक पार्ट ऑफ द बिजनेस में वो फाइनेंस सर्कुलेट होना चाहिए, तो ही मेरा बिजनेस चले। क्लियर? यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप टिल हियर ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चलो बाय बाय।